नहीं नहीं सर, मैंने लाइव सेक्शन कभी अटेंड नहीं किया बेसिकली, क्योंकि एमआर जॉब इन इंडिया इज क्वाइट हेक्टिक, तो हम मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मतलब मैं लाइव अटेंड कर पाऊँ। ऐसा पर आपने डे बताया था। सर, 3 3 आवर, 3 4 आवर, sometime it is 3, sometime it is 4, so average it will be 3 hours. So हाँ। basically 30 40% questions are changed, like they confuse कर रहे थे, not समथिंग पुटिंग नॉट, नॉट इज द आंसर। एंड ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट्स भी अच्छे, क्या मतलब पीटी के कम पॉइंट्स भी हो रहे हैं, तो भी वीजा ऑफर कर रही है गवर्नमेंट, तो इसके लिए ये अच्छी बात है। तो कैप्स अगर आपको कुछ करना है इमीडिएट, मतलब 6 मंथ में आपको कुछ रिजल्ट चाहिए, 7 मंथ में, सो यू गो विद द कैप्स। So hi everyone, welcome to you all in my another video. And today with us Akash. So he is one of the students from academically. So he today passed the CAPS exam in his first attempt. And Akash basically working as a MR in one of the top company in India. So you can say this MR job, this is not a easy job. So getting a time is very difficult because sometimes you have to work the late evening. You have to meet the doctors. So very busy schedule, and in between he got the time constantly study and he passed the exam. So we will talk to him and see about his journey. So a lot of basically you will learn from his journey a lot of new things. So how he passed the exam, what is his strategies, how academically helping. So hi Akash, how are you? आई एम फाइन सर। Can you please give us your brief introduction about yourself, your education, and currently what are you doing in India? Yes, myself Akash Jaiswal from Mumbai only. I had doing MR work in Cipla Respiratory basically. I have 2.5 year of experience in MR, and I passed out my pharmacy in 2020 in Corona. Okay. Yes sir, yes sir. तो दिस इज बेसिकली लास्ट टाइम अगर आपने एक वीडियो देखा होगा वो था नवीन जायसवाल का। वो एमआर थे एमपी Yes sir. में। और ये है आकाश जायसवाल, तो भाई भाई नहीं है ये लोग। ओके। मगर इन्होंने भी पास किया, ये जो उन्होंने चलो। दोनों ही एमआर थे, राइट? तो आकाश जो आपने ये पास किया, आई मीन फार्मेसी इन इंडिया में, तो आपके मन में ये मतलब आपका अंदर से था कि आपको एमआर बनना है या आप कुछ और करना चाहते थे? ऐसा तो नहीं था सर, मुझे एमआर ही बनना था। हाँ। बेसिकली जब कोविड आया तो जॉब्स आर वेरी लेस इन यस। कॉर्पोरेट सेक्टर्स, यस। सो वी, हाँ, सो वी गो विथ द सिंपलेस्ट वन विच वी कैन गेट अर्लीस्ट एज पॉसिबल. या। So just MR is getting as early as possible, and I grabbed that opportunity. I'm doing work and I feel good in this, but not so much better as I expect. So that's Because why. this is a marketing So job. Sales are always pressure will be there, some target will be there. But since you are yes sir, working 2.5 years, so you are doing very well. Otherwise, the companies are, yes sir. they always remove this and that. So Previously I work with my Aristo, तो उसमें थोड़ा प्रेशर हुआ करता था, but I am in Cipla, and Cipla is the pioneer in respiratory. That's why we are yes, not struggling, not that much. and this is a lot of they are the basically pioneer in India in that pretty. You're right. So Akash, आप basically MR थे है ना? Then आपको I mean how you know about this CAPS exam और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कैसे आपके मन में आया? कैसे आपको पता लगा about this exam? How you know? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपनी लाइफ में तो अर्न अच्छा ही कर रहा था, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं कम अर्न कर रहा था। बट मेरा जो भाई है, जो जी। यूएसए में काम कर रहा है एज अ मास्टर शेफ, सो Okay. ही अर्निंग प्रीटी मच गुड एज Yes. पर द इंडियन करेंसी। Yes, सो that's right. मुझे प्राउड हुआ कि सर वो आगे कर रहा है अपने लाइफ में, मेरे से 1 साल छोटा ही है, तो वो मेरे से ज्यादा कुछ अचीव कर रहा है अपने लाइफ में। तो Yes. फिर मुझे भी खटका यार, मैं एक जगह पे क्यों स्टक हो गया हूँ। नहीं, मेरी लाइफ चल रही है लेकिन मैं अब स्टक क्यों हो गया हूँ। तो Yes. जस्ट आई फाइंडिंग द सोर्सेस कि कोई कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ पे हो सकता है, तो जस्ट वी केम अप मीट टू यू ऑन यूट्यूब। बेसिकली योर चैनल इज देयर, मैंने वहां पे सब देखा डिटेल। तो बेसिकली मेरे को ये लगा कि ऑस्ट्रेलिया इज क्वाइट इजी टू क्रैक Yes. एंड फास्ट, Okay. So and so much of information is there on your YouTube channel regarding Australia. Most of the time Australia is the main concentrated subject from your side. yes, yes, yes. Basically, I came in Australia. So it personally take me around 8 years. देन मुझे पता लगा ये तो बहुत ही इजी जर्नी है, कोई भी विद इन 6 मंथ में आ सकता है। मुझे भी नहीं मालूम था अंटिल मैं ऑस्ट्रेलिया में आया, क्योंकि जब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं। जब वी आर इन फार्मेसी स्कूल,
तो कोई भी ऐसा बात बताएगा नहीं आपको कि फॉरेन में क्या होता है। वो तो बताएंगे कि इंडिया में आप एम फॉर्म कर लो, आप जीपैट एग्जाम दे लो। ये तो मेरे का भी वही हाल था मेरा भी, जब मैं तक यहाँ गया। तो इसीलिए जो है ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाइट बहुत ही इजी जर्नी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आप सिंपल से लगाओ, ये एग्जाम में 50% मार्क्स लेकर आने होते हैं कैप्स में। कनाडा का जो पीबीसी ऑनलाइन लेकर आने होते हैं 60%। तो ये जो ओके। पासिंग रेट है ये बहुत ही डिफरेंस करता है। वहां पर 20% लोग पास नहीं करते हैं कनाडा का एग्जाम, और उसके बाद भी जॉब नहीं मिल रही। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इजी एग्जाम है, आपको वीजा भी मिल रहा है, जॉब भी मिल रही है। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट कंट्री है अभी राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया को जो है मूव करने के लिए। इसीलिए सर मैंने ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट किया, बिकॉज इट इज गेटिंग पीआर इन वेरी लोएस्ट पॉइंट एज पीटी यू गॉट, यस। like 50-60% also get the visa. तो इसलिए आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे थे यूट्यूब पर, मतलब, और ऐसा कौन सा वीडियो था जिसने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और आपने कहा कि आप मुझे भी करना है? सर बेसिकली मैं ये सर्च किया कि सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया में व्हाट इज द मतलब पे क्या है, हाँ ठीक है, बेसिक चल। पे टू फार्मासिस्ट। हाँ, सैलरी कितनी है, ठीक है। Just I see that, and afterward the totally practice was different from Indian pharmacist, यस, as डेफिनेट। you see, and also different in hospital pharmacy and retail pharmacy, very quite much different. Like for hospital pharmacy, when they concentrate on the clinically perception is there clinically. हम्म। So I got interest in those subjects, so I come to you. तो ठीक है, तो फिर ये बताओ, आप अभी यू आर वर्किंग करंटली एज ए फुल टाइम एमआर, एंड दिस इज नॉट ए इजी जॉब Yes, sir. इन इंडिया। बहुत ही स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा ओवर काम करना पड़ता है इसके अंदर भी। तो आपने ये टाइम को कैसे मैनेज किया? आप किस टाइम पर पढ़ते थे और आप हमारी क्लास को कैसे करते थे, मतलब कैसे आपने किया? यस सर। तो बेसिकली सिप्ला में क्या होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ओके। फर्स्ट सैटरडे एंड सेकंड सैटरडे। सो ओके। मैं इवनिंग हमारा बैकलॉग होता था वो पढ़ता था मैं बेसिकली। अच्छा अच्छा, मतलब तो फिर आप लाइव रिकॉर्डेड सेक्शन देखते थे या ये रिकॉर्डेड किए हुए नहीं वीडियो? नहीं 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 सर, मैंने लाइव सेक्शन कभी अटेंड नहीं किया बेसिकली, क्योंकि एमआर जॉब इन इंडिया इज क्वाइट हेक्टिक, तो हम मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मतलब मैं लाइव अटेंड कर पाऊँ। यस, तो आप रिकॉर्डेड सेक्शन देखते थे और आपने जो मटेरियल था उस पर आप अपने नोट्स बनाते थे, क्या करते थे? यस सर, मैं फर्स्ट हैंडआउट्स लेके बैठता था, मैं हैंडआउट जेरोक्स किया था मैंने। जस्ट हाँ। मैं उसके साइड में लेके बैठता था कि जस्ट ये टॉपिक पढ़ा रहे सर, तो हाँ। आई फाइंड समथिंग एक्स्ट्रा। हाँ, तो आपने लिख लिया अगर वहाँ। वो एक, हाँ, अगर इट्स स्मॉल देन आई राइट इन द हैंडआउट, अगर स्मॉल नहीं है तो राइट इन द बुक। Just write the heading, topic, time, date, and which lecture it is, and which topic, and write down the notes, which is extra. ओके। इसके साथ साथ आप मतलब किस टाइम पे पढ़ते थे? मॉर्निंग टाइम में पढ़ते थे या रात रात में पढ़ते थे? कितने आवर्स आप पढ़ते थे पर डे के हिसाब से? कोई ऐसा Per आपने day, बताया था? sir, 3 hour, 3-4 hour. Sometime it is 3, sometime it is 4. So average it will be 3 hours. मतलब 3 आवर पर डे पढ़ते थे। आपने ये कितने महीने पढ़ाई किया? 3 मंथ, 4 मंथ? कितना टाइम लगा आपको क्रैक करने में, या 2 मंथ? नहीं नहीं सर, मैं 3 मंथ से कर रहा था ये। बेसिकली मैं ज्वाइन जनवरी से हुआ था, लेकिन तब मुझे इतना कुछ मैं इंटरेस्ट शो नहीं किया, मतलब मैं सिर्फ बीच में से वीडियो देख रहा था, जस्ट आई seeing the video. I don't writing any notes. I don't seeing any handout. After the March, I started off whole my journey with a start with a new page. ओके, तो मतलब ये आपने जो है ये 3 आवर पर डे पढ़ाई किया, 90 डेज तक कह सकते हैं आपने सीरियस होकर आपने पढ़ाई किया, और Yes, yes, sir. आपने ये क्रैक कर लिया ये एग्जाम। ओके, वेरी गुड। तो इट्स लाइक कौन सा टाइम आपको मिलता था टाइम पढ़ने के लिए? मॉर्निंग का टाइम या इवनिंग का टाइम, या? Evening, sir. Mostly we got time in evening, or very less time, like 2 hour in morning, max 2 hour या in दो morning. घंटे मॉर्निंग में पढ़ लिया, 1 घंटा शाम में पढ़ लिया, या शाम में 2 घंटे Hmm. पढ़ लिया, मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लिया, ऐसे पढ़ते थे आप? Yes, sir. ओके, और ये जो मॉक टेस्ट की आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया था? मॉक टेस्ट सर मैंने मतलब 3 to 4 times किया रहेगा बेसिकली। अच्छा, तो वो उसने आपको हेल्प किया, उसने आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया, क्या क्या ऐसा आपको लगा जो मॉक टेस्ट आप करते थे तो? सर मॉक टेस्ट तो मुझे इजी लगा, लेकिन इस बार जो कैब्स में आए थे वो मैं लास्ट डे पे गया था पेपर देने, तो हाँ। बेसिकली 30-40% क्वेश्चंस आर चेंज, हम्म। लाइक दे आर कंफ्यूज कर रहे थे, नॉट समथिंग पुटिंग नॉट, नॉट इज द आंसर, नॉट
कंपैरिजन में भी नॉट डाल दे रहे थे सर, तो बेसिकली ये कंफ्यूज कर रहे थे। और ये मेजरली इट इज डन इन पेपर टू। पेपर टू, ओके ओके, यस यस। यस सर। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर घुमा देता है ना, तो फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कोई क्वेश्चन तो वहीं से ही पूछता है, पर वो थोड़ा सा हर एक बार सेम क्वेश्चन नहीं होता है। वो थोड़ा सा उसको घुमा देगा, ऐसे नॉट लगा दिया उसने, या राइट चॉइस लगा देगा, है ना। और यस सर। तो इस टाइप से थोड़ा सा वो हो जाता है, मगर डेफिनेटली आपने सीख किया। लाइक वो ये पूछ लेते थे कि which of the following is not the advantage of heparin with low molecular weight heparin, like this। हम्म। और से पूरी लाइन में सेम रहता था, और नीचे सिर्फ एक एक दो सेंटेंस, मतलब एक दो वर्ड चेंज होते थे सर, सिर्फ हर एक एमसीक्यू में। तो ओके क्वाइट कंफ्यूजिंग थोड़ा पेपर टू रहा था मेरा, लेकिन क्वाइट कैलकुलेशन वाज गुड फ्रॉम माय साइड। ओके। तो यस। आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे आप जब 10th 12th में, या आपको बहुत क्या अच्छा था? तो नहीं था सर, मतलब एवरेज पर्सन। अच्छा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। योर राइट। तो आकाश, जो लोग हम लोग को अभी वीडियो देख रहे हैं, और जो लोग मतलब कैप्स लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मतलब उनके लिए कि कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या करना चाहिए, जस्ट हैंडआउट्स का एक जेरोक्स लेना चाहिए और एक बुक रखना चाहिए। फर्स्ट आपको लेक्चर देख लेना है और उसमें देखना है कि क्या क्या सर जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते थे जस्ट टॉपिक नेम इज देयर एंड यू जस्ट हैव टू एलॉबरेट इन डिटेल, यस। एक्सप्लेन इन डिटेल। तो वो जो भी डिटेल्स है थोड़े बहुत आप लिख लो, कि स्पेसिफिक पॉइंट जो भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट राइट इट डाउन। इफ बिग, you write in notebook, or it's short in 1 word, 2 word or 3 word, just write on handout. Whenever you read with the handout you can go through the each point of that topic। और इसके बाद हम क्या करते थे, जब 3 टॉपिक हो जाता था तो हम मॉक सॉल्व करते थे। मॉक सॉल्व करने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे मॉक्स में जो थोड़ा अलग हुआ करते थे, मतलब वो समझ में नहीं आते थे, या फिर हमने मतलब जो रॉन्ग एमसीक्यू है हम उसको हटा के राइट आंसर भी चूज करते तो कुछ रॉन्ग हो जाते थे ऐसे। तो वो टॉपिक में लिख लेता था, बेसिकली वो एमसीक्यू लिख लेता था, और जस्ट रेफर द होल लेक्चर रिगार्डिंग ऑन डॉट टॉपिक ऑफ एमसीक्यू। ओके मीन्स रेस्पिरेटरी में साइनोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, जस्ट अगर उसमें कुछ ये हुआ है तो फिर उसके रिगार्डिंग जाके लेक्चर में देख लेता था कि बस दैट, एंड रीड आउट हैंड आउट स्पेशली with special concentration on that। ओके। डेफिनेटली उसको जो है आप लोग प्रिंट आउट करके, जो है हमारा जो हैंड आउट, हम लोग बेसिकली हम लोग लाइव सेशन लेते हैं, फिर हम एक हैंड आउट देते हैं उसी एक टॉपिक का। फॉर एग्जांपल जैसे सीबीएस हो गया, या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो उसको आप प्रिंट आउट कर लो और आप उस वीडियो को देखते रहो। आकाश ने बताया कि जो उन फिर आप जो है कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स से आप वहाँ निकलो, मतलब आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के जो 2 3 वीक बचते हैं, रिवीजन करने में आपको बहुत ही ईजी रहेगा। अदरवाइज आप सारे के सारे लेक्चर दोबारा नहीं नहीं देख पाओगे आप, है ना, कोई टाइम का शॉर्टेज रहेगा आपके पास में। तो आकाश, एट द एंड आप कुछ और बोलना चाहते हो? जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं बस कि हमें करना चाहिए या नहीं, ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए अच्छी जगह है नहीं, और बहुत सारे मन में लोगों के क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं क्या हम लोग कोई फेक फेक कंसल्टेंसी तो नहीं, कोई कंपनी तो नहीं है भाई पैसे लेके हमारा हम भाग जाए। नहीं 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 सर, बेसिकली कैप्स इज वेरी इजी एग्जाम एज compared to other international exam like PEBC, any other exam you consider। So caps is the very easiest one, so you can easily go with 3 month। 3 month is very good, pretty much enough for to clear the caps। If you want to clear PEBC you require 6 month or 1 year sometimes, but caps is required just 3 month to go। So very easiest paper you got, paper one is very easy and paper two is quite not much easy। So that very easy to go with caps। एंड ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट्स भी अच्छे, क्या मतलब पीटी के कम पॉइंट्स भी हो रहे हैं तो भी वीजा ऑफर कर रही है गवर्नमेंट, तो इसके लिए ये अच्छी बात है। तो कैप्स अगर आपको कुछ करना है इमीडिएट, मतलब 6 मंथ में आपको कुछ रिजल्ट चाहिए 7 मंथ में, सो यू गो विद द कैप्स। बेसिकली आई वुड टेल दैट, एंड वेरी इजी एग्जाम, यू जस्ट go with the process is the guide। Yes, so guys, we basically at academically we provide all the assistance like skill assessment, we help, then exam, then PT, English, OET, IELTS, we provide all the. Even personally, I guide the students basically, to each step what they have to do. So if you are thinking, if you are a pharmacist, many pharmacists in India they always complain that pharmacy is not a good code. There is no jobs in India. So please
This is not like this. Please see beyond the India. Okay, wherever you want to go, US, Canada, UK, whatever your dream. Okay, so please achieve your dream, and you have to work basically hard. एंड बेसिकली यू नीड टू टेक द स्टेप, डोंट जस्ट थिंक। आप सोच रहे हो कि मैं करूंगा करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप लेना है कि आपको कहाँ जाना है, उसी की फिर आपको जो है मेहनत करनी है। डेफिनेटली एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल रहेंगे, और आपको जो है यू विल फील प्राउड बेसिकली इफ यू आर वर्किंग इन अब्रॉड एज ए फार्मासिस्ट। दिस इज नॉट लाइक इन इंडिया, वी आर कंप्लेनिंग कि भाई वहां पर जो है कोई 10th पास भी फार्मेसी खोल लेता है हमारे वहां पर, राइट। तो एक अच्छा स्कोप है फार्मेसी का ऑस्ट्रेलिया में। इज द राइट टाइम फॉर यू इफ यू आर लुकिंग टू माइग्रेट। एंड थैंक यू सो मच आकाश। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय।